Welcome back. Now we take your questions. If you have a question yourself, send it to us at QuranSpeaks.com. So Dr. Shabir, the question that we have from our viewer today is about circumcision in Islam and its promotion. And there's a study that shows that it's a very harmful procedure. So why is it promoted in Islam then? Well, first of all, what we promote in Islam is the male circumcision, because this is regarded not only as the sunnah or practice of our Prophet Muhammad, peace be upon him, but a practice that goes back all the way to the Prophet Abraham and has been practiced by many prophets since. When it comes to female circumcision, definitely we are to avoid what is referred to as FGM, or female genital mutilation. It is mentioned by some of our classical scholars that that too is a sunnah, the circumcision without mutilation. But to avoid the possibility of mutilation, since this is not necessary, it's not stressed in the hadith of the Prophet, peace be upon him, we should avoid female circumcision altogether. But male circumcision, this is not known to be harmful. I'm not aware of any study which shows that this is harmful. And it is known to be a practice of the major prophets. Jesus himself is said to have been circumcised. Thank you very much, Dr. Shabir. You're welcome. Nevertheless, this should not deter or prevent a person from accepting Islam. Unfortunately and unwisely, when a Christian comes to embrace Islam and he's very interested in it, those who call him to Islam out of ignorance would say, oh, but you have to be circumcised. And this may deter and prevent this person from accepting Islam. And this is wrong. This is a trivial issue compared to his Islam. Let him accept Islam, and if he's afraid that he might bleed or that this might impact his health or endanger his safety, if a doctor says he's too old for it, in this case, there's no problem in him not being circumcised. But this should not be an obstacle between him and accepting Islam, and Allah Azza wa Jal. मुसलमानों में दलित हैं, होते नहीं हैं, लेकिन अभी तक वो वोटर रहे, वोकल नहीं रहे। मुसलमानों में नट है, पमरिया है, हलालखोर है, भंगी है, भाट है, धोबी है। उसी तरह जो उधर भी जातियां हैं, इधर भी जातियां लगभग 1 दर्जन की जातियां हैं। मेरा नाम मोहम्मद कलाम आजाद है जी। हम भी बक्को बिरादरी से हैं। इस्लाम धर्म मानने वाले जात होते हैं। पक्कों की काम, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, स्टील की बर्तन होती है, ला करके इसको हम लोग बना उना करके फिर रोड पर जाकर हम लोग इसको बिक्री करते हैं। क्योंकि बाकी जो बिरादरी है, जो सैयद है, किसान है, शेख, ये लोग क्या बक्कों के जो काम को या बक्कों की बिरादरी को नीचे समझते हैं? एकदम नीचे समझते हैं। शेख सैयद जो लोग हैं, बड़े खानदान के हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, तो अभी तक अपने घर को बैठने भी नहीं देते हैं साथ में। छूत मानते हैं, दिन मानते हैं। ये तो घर घर का है, जिससे पूछेगा आप बता सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मतलब जात पात है? हाँ, जात पात अभी है। जात पात एक ही जगह नहीं है कि मस्जिद जहाँ पर हम लोग अल्लाह की इबादत करने जाते हैं, वहाँ पर कोई जात पात नहीं है। वहाँ पर इसलिए बना लिया गया है कि हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं, एक साथ पढ़िए, मगर एक साथ और कोई कर्म नहीं कर सकते हैं आप। वहाँ से निकलने के बाद आप जात पात में वहाँ ये सब भूल जाइए। वहाँ से निकलिए, सीढ़ी से उतरिए और शुरू हो जाएगा। वहाँ पर 5 मिनट या 10 मिनट अल्लाह का डर उसको लगता है कि मुसलमान सब एक इस्लाम के मानने वाले हैं, मगर उस मस्जिद के अंदर से बाहर निकलिए, इस्लाम चला गया इधर और वो क्या बोलता है, शोषण आ जाता है आगे में। यानी कि जो इस्लाम का पैगाम था, मसावात का, बराबरी का, वो समाज में अभी तक यहाँ अपना नहीं पाए हैं। डॉक्टर इकबाल को लगा था, जिनका सारे जहाँ से था हिंदुस्तान हमारा लिखा हुआ है, उनका एक शेर है कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो।
काम सेम रहा, धर्म बदला और धर्म भी उन्होंने कुछ चाह में बदला था। वो चाह ये था कि चूंकि वहाँ अनसिविलिटी था, वह अस्पृश्यता था, जिसके वजह से वो चाहते थे कि भाई हम भी अपने लोगों के साथ उठे बैठे, और वहाँ वो लोग उनको दरकिनार रखते थे। तो उन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया कि इस्लाम में जब जाएंगे तो हमको बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी जो मुसलमानों के मनोवादी लोग थे, है नहीं, मुसलमानों के मनोवादी लोग जिन्होंने यहाँ वर्ण व्यवस्था कायम करके रखा, और लिखा हुआ है हमारे यहाँ अहमद राजा खान साहब ने फतावा रिजविया में लिखा कि अगर ये जुलाहा और हायक, है नहीं, और क्या कहते हैं कसाई और नाई और धोबी, ये जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, ये आलिम भी हो जाएंगे, विद्वान भी हो जाएंगे, तब भी ये सैयद के बराबर के नहीं हो सकते, शेख के बराबर के। ये सुरफा के कुफू नहीं, यही लाइन है। ऐसा है, कब्रिस्तान भी अलग है और दलित मुसलमानों का मस्जिद भी अलग है। आप लोहरदगा में एक 15 बस्ती है जहाँ की आबादी करीब 100 घर से ज्यादा पमरिया लोग बसते हैं। वहाँ पर ही लोग ने उसको मार धार के भगा दिया और कहा जुमा के नमाज में कि पमरिया लोग तुम पीछे जाओ, आगे नमाज पढ़ेगा। उस पर इन लोग ने कुछ मारा पीटी हुआ, अंत में ये हो गया कि वो लोग एनसीसी से जुड़ गए, मारा पीटी किए। तब अंत में लोग कहा कि कितना हम लोग लड़ेंगे, तो वो लोग ने पमरिया बिरादरी की मस्जिद अपने अलग बना लिया, है नहीं। वो मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, तो उस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने के लिए वो मुसलमान हुए, है नहीं। और आज भी उनको मस्जिद में बराबरी में नमाज पढ़ने के लिए उनको सीपीआई एबेल का सहारा लेना पड़ता है। ये जो फॉरवर्ड मुसलमान है अपने दलित भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि तुम सीपीआई ज्वाइन कर क्या हो तो नमाज पढ़ने देंगे, नहीं तो तुम मस्जिद से बाहर हो। मुसलमानों के लाख से छुआछूत है, ये है मुसलमानों में। हमारे गांव में खुद कब्रिस्तान अलग है, हमारे पमरिया कब्रिस्तान अलग है, मंसूरी कब्रिस्तान अलग है, सैयदों कब्रिस्तान अलग है, दुनिया कब्रिस्तान अलग है, और लोग कहते हैं अनटचेबल नहीं है। हिंदू जब मुसलमान को टारगेट करके हिंदू पोलराइजेशन करता है तो नेता तो उसका ब्राह्मण ही बनता है। तो मुसलमान जब पोलराइज होता है तो नेता तो सैयद ही बनता है, नहीं तो कोई तो शेख या पठान ही बनता है। जुलाहा को कहाँ कौन नेता बनता है? ये एक और चीज बताइए कि जो बीजेपी का जोर रहा बीच में और हिंदू भी अपने साथ रखे, तो ये कौन कौन लीडर हैं और उनकी क्या कास्ट है? तो टोटल फॉरवर्ड कास्ट के लोग, ये लोग टोटल फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं। बिहार में गए जो अनवारुल हक शेख बिरादरी के थे, सैयद शाहनवाज तो जानवे के थे सैयद हैं। फिर आरिफ मोहम्मद खान गए, खान है। फिर नईमा अब्दुल्ला के वो सैयद हैं। दोनों तरफ से उधर के फॉरवर्ड और इधर के फॉरवर्ड मिलकर के इस किस्म का संगठन बनाते हैं। एक दूध गर्म करता है, दूसरा उसमें जोरन डालता है और सांप्रदायिकता का दही जमा करके राज करना चाहते हैं। ये दोनों तरफ के फॉरवर्ड लोग। तो ये तो मामला है। हमारा पसमानदा मुसलमान कभी ना कॉमनल था, न कॉमनल है, और न हमारे यहाँ की ऐसी ट्रेनिंग है। तो ये जात पात हमारे उलमाओं का दिन है, हमारी दिन नहीं। हम तो डॉक्टर नूर हसन आजाद है, मुमताज आलम साहब है। बाद में पता चला कि हम तो पमरिया हैं। वो असल में ये है कि मुसलमानों का जो 85% आबादी है वो हिंदू दलित से कन्वर्ट हुआ है। हम यहाँ जो इंडिया में पोजीशन है, आज ही पसमानदा मुसलमान के टोटल समझिए पसमानदा मुसलमान है, और ये 20% या 15% ये फॉरवर्ड मुसलमान ये टोपी की तरह से पसमानदा मुसलमान के सर पर बैठ गए हैं और काम इससे लेते हैं। टोपी बन गए हैं और काम लेते हैं इससे। This Varna, as far as I can see in the present day, I think it is even today very relevant. Those who can carry the tradition of the Shastra